बीजेपी भगतां दा ये कहना सी कि एवें ही अंदोलन कर रहे सरकार ते कह रही है। सरकार कह रही है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, पर इत्थे तां जिहड़े सच कुछ होर ही सामने आ। जिहड़ी सरकार बीजेपी कह रही सी एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, वो बिल्कुल झूठी साबित हुई है। अज सच झूठ दा जिहड़ा वो नतारा हो गया। जे मोदी जी ने कह दिता है तो फिर 1975 क्यों नहीं मिल रहा? 200 रुपए प्रति क्विंटल किसान नूं क्यों घाटा हो रहा है? ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब है कि सरकार ਜਿਹੜੀ है दोगली है। ਉਹਦੇ बिल्कुल दोगले फैसले ने लोगों ਨੂੰ झूठ बोलना, गुमराह करना, ये साबित हो रहा कि ਜਿਹੜਾ किसान ਦਾ अंदोलन है बिल्कुल सच्चा है। भारत सरकार ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है। FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ FCI ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP है और MSP रहेगा, ये साबित हो गया कि सरकार झूठ बोल रही है। बिल्कुल ये दिल्ली दी मंडी दा हाल है जिथे संयुक्त किसान मोर्चे दी टीम किसान आगू मनजीत सिंह राय, युद्धवीर सिंह इत्थे पहुंचे सी। तुसीं देख सकदे हो कणक दी जिहड़ी खरीद नूं लैके जिहड़ी धांधली हो रही है उसदे बारे चानण पाउण दे लई अज संयुक्त किसान मोर्चे की टीम इत्थे पहुंची सी। गलबात करते हैं मनजीत सिंह राय साडे नाल। राय साहब किद्दां देखदे हो, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, किसानां दी जिहड़ी फसल सरकार कह रही है कि MSP है, MSP रहेगी, पर इत्थे तां जिहड़े सच कुछ होर ही सामने आ। ये अज सानू पता लग्या दिल्ली की जिहड़ी नरेला मंडी है, जिहड़ी किसी टाइम एशिया की नंबर 1 मंडी मनी जाती सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1770 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ बीजेपी ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ MSP है, MSP रहेगा, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਾਂ बीजेपी ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 1975 क्यों नहीं मिल रहा? 200 रुपए प्रति क्विंटल किसान नूं क्यों घाटा हो रहा है? ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब है कि सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ दोगली है। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ FCI ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 2600 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FCI ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ FCI ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ MSP ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 1975 ਰੁਪਏ ਰੇਟ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP है और MSP रहेगा, ये साबित हो गया कि सरकार झूठ बोल रही है। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ यहाँ अपनी फसल बेचने आए थे? हाँ। किस रेट बिकी आपको? 1775।
सरकार तो कह रही है कि 1975 पे जो फसल है वो बिकती है, एमएसपी है। दिल्ली में नहीं बिकती। दिल्ली में ये 1700, 1700, 1750, 75 ऐसे बिकते हैं। सूखे गेहूँ 10 मौसर गेहूँ में ये यहाँ 225 रुपये मंदा बिक रहा है। यहाँ नुकसान है 225 रुपये कुंटल का। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहता है कि हमने किसानों के लिए बड़ा अच्छा किया, किसान वहाँ बड़े खुशहाल है, एमएसपी पे फसल जो बिकती है। तो किसको जिम्मेवार मानते हो आप? दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। क्या है, केजरीवाल उस ऊपर कहे कुछ करे या केंद्र सरकार करे तभी काम बढ़ सकता है। अभी आपको पूरी एमएसपी पे जो गेहूं वो बिकी है किसी साल में? आज से 5 साल पहले भी क्या करते, 5 साल के बाद दिल्ली में तो यही भाव बिक रहे हैं, 100-200 रुपये मंदा। यहाँ खरीद कौन करता है? एफसीआई करती है? मिलर प्राइवेट प्लेयर करते हैं? हाँ, प्राइवेट जो यहाँ मिल है वो आना है, नरेला है, ये मिल वाले खरीदते हैं। बड़े बड़े कंपनी है, आईटीसी कंपनी है, ये खरीदते हैं यहाँ से। एफसीआई नहीं खरीदती ना, एफसीआई नहीं खरीदती। एफसीआई नहीं खरीदती। एफसीआई तो कई किसान ले गए भी गए, मास्टर कह बाहर निकाल देते हैं। वो कहते ट्रालिया ले आओ अंदर। क्या कहते क्या है एफसीआई वाले? क्या तर्क क्या देते हैं आपको? लेते नहीं हुए ये जो आड़ते हैं यहाँ के, उनकी आड़त खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। तो आड़ती क्यों बेचेगा फिर एफसीआई को? जब उसको कुछ, जैसे हमें आप सर्विसमैन हो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप नौकरी क्यों करोगे? ऐसे ही आड़ती जितने यहाँ 500 आड़ती हैं, किसान आड़त नहीं देती किस आड़ती को। जो आड़त होती है ना, 2% कमीशन होता है, वो आड़ती को नहीं देती। किसान आड़ती बीच में नहीं आता, इसलिए क्योंकि उसको कुछ बना ही नहीं गा, तो क्यों बीच में वो पंगा लेगा? मजदूर भी है, उनकी देख रेख भी करनी है, किसानों को पैसा भी देना पड़ता है। जो आड़ती था उसने कब से ये फसल खरीदनी बंद कर दी? कितने साल हो गए? आड़ती तो बेचता है यहाँ से माल किसान लाता है, यहाँ का आड़ती बेचता है। और जो है गवर्नमेंट है उसको दाम आड़त नहीं दे रही या कमीशन नहीं दे रही, तो कमीशन वगैरह आड़ती गेहूँ नहीं बेचता गवर्नमेंट को। उसके पास वर्कर भी है, मनी भी है, उसका अपना खर्चा भी है। ये भी है किसान तलवा का पैसे ले जाए। मतलब जो आड़ती की कमीशन सरकार से मिलनी थी उसका नुकसान आपको हो रहा है, किसान को हो रहा है, आप ये कहना चाहते हो? किसान को भी नुकसान, आड़ती को भी नुकसान। किसान को तो 12 नुकसान है, आड़ती को अपना कमीशन का नुकसान है। आपके 2-4 किलोमीटर की दूरी पे सिंघू बॉर्डर है, वहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 4.5 महीने से बैठे हैं। क्या आप उनके साथ बैठते हो जाके? उनके साथ आपकी भावनाएं हैं? उनके साथ भावना है, पूरी भावना है। क्या करे फिर, अल्लाचारी है भाई। लाला को के पैसे ले रखे वह भी दे दे। यहाँ किसान ले आया, किसान नु तो नहीं किसी अफसर के पास जाएगा, वो तो आड़ती पर निर्भर है। मान लो इसको 10,000 की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत आड़ती इसको दे देगा। कई लाख रुपए ले जा, अपनी ब्याह शादी है, कुछ भी है, शादी भी है, सब कुछ काम करा है। हाँ, आड़ती को कमीशन नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट को क्यों देगा? तू बता, गवर्नमेंट दे देगी हमें पैसा? ना देवे तो तुरंत खेत में कहा था तुरंत मांग क्या करते हो आप? क्या कहना चाहते हो? बस ये चाहो गवर्नमेंट इनको ले और आड़ती कमीशन दे, किसानों को का अपना माल खरीदा है और अपना जो है काम चलता रहे पहले जैसा। कोई दीप जी पूरी घटना दसो कि गलबात हो की गई है, की करना है तुसी? आज किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक डेलीगेशन यहाँ नरला मंडी में और नजफगढ़ मंडी के लिए भेजा गया है। आज नरला मंडी में आए हैं, कल रियलिटी चेक करने के लिए, ताकि हम प्रधानमंत्री जी की बातों पे पूरा विश्वास करते हैं, भरोसा भी करते हैं। वो कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो हमें सोच के आए थे कि दिल्ली के किसान जो राजधानी में जहाँ कानून बने हैं, तो ये सोच के आए थे कि दिल्ली का किसान बड़ा खुश होगा। मैं खुद दिल्ली का ही हूँ और दिल्ली का किसान भी हूँ। तो यहाँ के पता लगा 1750 रुपये से लेके जो अच्छा गेहूँ है 1770 रुपये तक बिक रहा है। और पिछले 6 साल से यहाँ एफसीआई ने, केंद्र सरकार की जो कंपनी है एफसीआई, वो यहाँ पे खरीद नहीं कर रही है। और ये साथ में आप दिखाइए अपने दर्शकों को, ये जो 3 सेट आपको दिख रही है, ये एफसीआई का गोदाम है। और एफसीआई को खरीद करके पंजाब से, हरियाणा से जब वो लेके आते हैं तो इसी गोदाम में स्टोर करते हैं।
उनका वहाँ से लेके यहाँ तक आने का खर्चा बढ़ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता होगा। और हमारे यहाँ से है जो बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे उनका गोदाम है। नरेला के किसानों का गेहूँ नहीं खरीद रहे, दिल्ली के किसानों का गेहूँ नहीं खरीद रहे, तो पंजाब में, हरियाणा में जो किसानों का डर है वो सच है। आने वाले टाइम में जैसे हमारी, अब हम क्या करें, हमारे पास और ऑप्शन तो है नहीं, हमारी फसल पक के तैयार हो गई है, घर पे हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम मंडी में ही तो लेके आएंगे। और मंडी में यदि एमएसपी ना मिले, 1750 रुपये में बेच कर जाना पड़े, 1975 रुपये एमएसपी है, तो अब हम अपने घर पे क्या लेके जाएंगे। जी आप, मुझे लगता है कि मेरी बात का जो मेरा सवाल है उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। यहाँ खरीद कौन करता है? प्राइवेट प्लेयर है जो वो खरीद करता है, आड़तिया खरीद करता है, कौन करता है खरीद? देश में कहीं पे भी फसल जो खरीदी जाती है वो एफसीआई, केंद्र सरकार की एजेंसियां खरीद करती हैं, कोई भी स्टेट नहीं खरीदती है। 2014 में क्या हुआ था, केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद में कुछ स्टेटें हैं जो बोनस दे देती थी किसानों को, 100 रुपये क्विंटल, यदि कम रेट मिलते थे 200 रुपये क्विंटल के, आपको यदि एमएसपी में और उसमें कोई घाटा हो जाता है तो सरकार उसका कंपनसेशन देने की कोशिश करती थी। 2014 के एंड में केंद्र सरकार ने ये फैसला कर दिया कि आज के बाद में कोई भी सरकार अपनी तरफ से किसान को लुभाने के लिए कुछ नहीं दे सकती, तो स्टेट तो कुछ कर ही नहीं सकती इसमें। ये केंद्र खरीद का काम केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार की एफसीआई कंपनी है, एजेंसी है, वो खरीदती है। अभी 4 दिन पहले यहाँ मंडी में मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मंडी में नहीं खरीदेंगे, एफसीआई में खरीद लेंगे, अब आपको वहाँ पे भी ले चलेंगे। आज वहाँ पे उस एफसीआई में जहाँ हमारी गेहूँ खरीदने की बात केंद्र सरकार ने बोली थी, उस पर ताला लगा हुआ है, बाहर पुलिस बैठी हुई है। तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है? हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। तो हम बड़े, दिल्ली के किसान है जो देश के किसान के साथ में ही घुन में, गेहूँ में जो घुन पिसता ना, वही है, हम वो घुन ही है कि देश में जो हो रहा है वो दिल्ली में भी हो रहा है, तो दिल्ली का किसान भी इतना खुश नहीं है। कितने साल हो गए कि यहाँ आप बता रहे थे कि 2014 पर जब हम चेयरमैन साहब से पूछा तो वो बोल रहे थे कि 2008 से जो एमएसपी के नीचे वो फसल खरीदनी शुरू हो चुकी थी। आपको क्या लगता है कि किस साल से जाके जो एमएसपी से कम जो फसल वो खरीदनी शुरू हो गई? एफसीआई ने 2016 अप्रैल के बाद में यहाँ जो सरकारी बोली होती है, सरकारी खरीद होती है, वो नहीं खरीदी है। उससे पहले होती थी। उससे पहले तो आपको ये बता दूं, 2012 में और 2013 में रिकॉर्ड यहाँ रेट मिले हैं सरकारी जो एमएसपी होती थी उससे भी कई गुना ज़्यादा मिलते। धानों का भी रेट है यहाँ पे 5500 रुपये बिका है। देश की एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है नरेला। तो यहाँ पे कोई एफसीआई की सिवा कोई और ऐसी एजेंसी है जो खरीद करती है दिल्ली में? दिल्ली में एफसीआई करती है जी, एफसीआई करती है। एफसीआई का गोदाम साथ में है, लेकिन वो कर नहीं रही है। क्यों नहीं कर रही है? कि वो चाह रही है कि किसान इस गेहूं को सस्ते में बेचे और अंबानी अडानी इस गेहूं को उठाए यहाँ से और सीधा है जो नए नए गोदाम बने हैं अंबानी अडानी के, उसमें जाकर स्टोर करे, और जब उपभोक्ता के पास ये गेहूं आए वो 50 रुपये किलो उसको पिसाई करके आटा देंगे। शक्ति भोग वाले, आशीर्वाद वाले, रामदेव जो कह रहा है कि मैं देशभक्त हूँ, वो भी ऐसे ही करेगा। किसान दिल्ली में जो पिछले 4.5 महीने से धरना दे रहे हैं, तो दूसरे तरफ सरकार तो कह रही है कि एमएसपी भी हम फसल खरीद रहे हैं, तो उनको अभी उनको क्या जरूरत है कि आप वो एमएसपी कम खरीदें? क्योंकि एक तरफ तो प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ वो रिस्क क्यों लेगी सरकार? क्यों रिस्क लेगी? यही दिखाने आए हैं कि आज आप खुद देख लो उनकी करनी और कथनी के फर्क आप देख लो। हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये आंदोलन कर रहे हैं इसलिए हमारे, लेकिन आज आप उस किसान से मिले, बकोली गाँव के किसान है, आप उस किसान से भी मिले हो जिसने यहाँ फसल बेची है। हम तो इसलिए आए हैं कि किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो किसान यहाँ बेच रहा है उसका क्या हाल हो रहा है? 300 रुपये 200 रुपये क्विंटल क्यों सस्ते में बिक रही है जी? हमारा कहना यही है, केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी, जिन जिन के हाथ में ये है, या तो इसकी खरीद चालू कर दो, नहीं तो फिर किसान इसका भी इलाज करेगा। दिल्ली का किसान भी इसका इलाज कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में भी आंदोलन खड़े हो जाएंगे यदि एफसीआई ने खरीद शुरू नहीं की नजफगढ़ मंडी में और नरला मंडी में। या तो अपने गोदाम में बुलाए या यहाँ बुलाए, जहाँ बोल लेंगे किसान वहाँ जाने के लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली का किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इस फसल को बेच के उसको अपने घर में राशन ले जाना है, इस फसल को बेच के उसने अपनी लड़की की शादी करनी है, इस फसल को बेच के उसने अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है। लेकिन सरकार जो पड़ताड़ दे रही है, हम दुखी हो चुके हैं। बिल्कुल ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1770 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 1975 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਗਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 2600 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 1975 ਰੁਪਏ ਰੇਟ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ यहाँ अपनी फसल बेचने आए थे? हाँ। किस रेट बिकी आपको? 1775। सरकार तो कह रही है कि 1975 पे जो फसल है वो बिकती है, एमएसपी है। दिल्ली में नहीं बिकती, दिल्ली में ये 1700, 17.5, 17.5, 75 से बिकते हैं। सूख के गेहूँ 10 मोस्तर गेहूँ में ये यहाँ 225 रुपये मंदा बिक रहा है। यहाँ नुकसान है 225 रुपये कुंटल का। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहता है कि हमने किसानों के लिए बड़ा अच्छा किया, किसान वहाँ बड़े खुशहाल है, एमएसपी पे फसल जो बिकती है, तो किसको जिम्मेवार मानते हो? दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। क्या है, केजरीवाल उस ऊपर कहे कुछ करे या केंद्र सरकार करे तब भी काम बढ़ सकता है। अभी आपको पूरी एमएसपी पे जो गेहूँ वो बिकी है किसी साल में? आज से 5 साल पहले भी क्या करते, 5 साल के बाद दिल्ली में तो यही भाव बिक रहे हैं, 100-200 रुपये मंदा। यहाँ खरीद कौन करता है? एफसीआई करती है? मिलर है, प्राइवेट प्लेयर करते हैं? हाँ, प्राइवेट जो यहाँ मिल है वो आना है, नरेला है, ये मिल वाले खरीदते हैं। बड़े बड़े कंपनी है, आईटीसी कंपनी है, ये खरीदते हैं यहाँ से। एफसीआई नहीं खरीदती? ना, एफसीआई नहीं खरीदती, एफसीआई नहीं खरीदती। एफसीआई तो कई किसान ले भी गए, मास्टर कह बाहर निकाल देते हैं। वो कहते ट्रालिया ले आओ अंदर। क्या कहते क्या है एफसी वाले? क्या तर्क क्या देते हैं आपको? लेते नहीं हुए ये जो आड़ती है यहाँ के, उनकी आड़त ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने, तो आड़ती क्यों बेचेगा फिर एफसीआई को? जब उसको कुछ, जैसे हमें आप सर्विसमैन हो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप नौकरी क्यों करोगे? ऐसे ही आड़ती जितने यहाँ 500 आड़ती हैं, किसान आड़त नहीं देती
आड़ती को जो आड़त होती है ना 2% कमीशन होता है वो आड़ती को नहीं देती। किसान आड़ती बीच में नहीं आता इसलिए क्योंकि उसको कुछ बना ही नहीं गा तो क्यों बीच में वो पंगा लेगा। मजदूर भी है, उनकी देख रेख भी करनी है, किसानों को पैसा भी देना पड़ता है। जो आड़ती था उसने कब से ये फसल खरीदनी बंद कर दी, कितने साल हो गए? आड़ती तो बेचता है यहाँ से माल किसान लाता है, यहाँ का आड़ती बेचता है और जो है गवर्नमेंट है उसको दाम आड़त नहीं दे रही या कमीशन नहीं दे रही तो कमीशन वगैरह आड़ती गेहूँ नहीं बेचता गवर्नमेंट को। उसके पास वर्कर भी है, मनीम भी हैं, उसका अपना खर्चा भी है, ये भी है किसान तलवा का पैसे ले जाए। मतलब जो आड़ती की कमीशन सरकार से मिलनी थी उसका नुकसान आपको हो रहा है, किसान को हो रहा है, आप ये कहना चाहते हो? किसान को भी नुकसान, आड़ती को भी नुकसान। किसान को तो 12 नुकसान है, आड़ती को अपना कमीशन का नुकसान है। आपके 2-4 किलोमीटर की दूरी पे सिंघू बॉर्डर है, वहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 4.5 महीने से बैठे हैं। क्या आप उनके साथ बैठते हो जाके, उनके साथ आपकी भावनाएं हैं उनके साथ? भावना है, पूरी भावना है, क्या करे फिर अल्लाचारी है। भाई लाला को के पैसे ले रखे वह भी दे दे। यहाँ किसान ले आया, किसान नु तो नहीं किसी अफसर के पास जाएगा, वो तो आड़ती भाई निर्भर है, मान लो इसको 10,000 की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत आड़ती इसको दे देगा। कई लाख रुपए ले जा, अपनी ब्याह शादी है, कुछ भी है, शादी भी है, सब कुछ काम कराए। हाँ, आड़ती को कमीशन नहीं बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को क्यों देगा? तू बता गवर्नमेंट दे देगी हमें पैसा ना देवे तो तुरंत खेत में कहाँ था लगा? तुरंत मांग क्या करते हो आप, क्या कहना चाहते हो? बस ये चाहो गवर्नमेंट इनको ले और आड़ती का कमीशन दे, किसानों को का अपना माल खरीदा है और अपना जो है काम चलता रहे पहले जैसा। बिल्कुल एक किसान भी तुसी सुनिया, किसान आगूਆਂ भी तुसी सुनिया कि संयुक्त किसान मोर्चे ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।